Hello friends, so we are back again to Sanjay Agarwal maths classes. In last 20 episodes, we had covered vectors very elaborately, where I covered all the theory and we did 3 assignments called practice paper 1, 2 and 3 consisting of around 80 numericals. So that's more than sufficient for your board exam, and we'll take one more episode where we cover some remaining questions from NCERT. So today's class is episode number 1 on a new chapter, 3-dimensional coordinate geometry. So this chapter had more parts in it, like straight line, planes and lines and planes together. But planes have been now deleted from the syllabus, so 50% of the workload from your coordinate geometry has been reduced. So we will do the basics of coordinate geometry, then we'll do the theory of straight lines, and then we will do the numericals on them exactly on the style as we did vectors. So I hope the vectors is clear to you by now if you have gone through all the episodes. So now we start episode number 1 on 3-dimensional coordinate geometry, and this episode will be on basics of your theory. Not only your theory, basics of your theory of class 10 and 11. So let us now start. So when you are talking about coordinate geometry, you need to have planes, x-axis, y-axis, z-axis and planes passing through them. So if you take 2-dimensional coordinate geometry, this surface of the blackboard will become a plane. You draw a horizontal line, draw another vertical line at right angles to this horizontal line. The horizontal line by default is called x-axis. This is what you studied in class 9 also. This is called y-axis. This point is called origin. From there it is called negative x-axis. Maybe you can put x dash, and this is negative y-axis. Then you make equal markings on them, whatever unit you choose. 1, 2, 3, 4. Similarly, you will mark here -1, -2, -3. 1, 2, 3 and so on. All should be equidistant. So this you are very familiar from your lower classes, but since I am starting from very beginning, I am explaining what you studied in class 9, 10 and 11. Now these are 4 parts. I have divided the plane into 4 parts and they are called quadrants. So this is called first quadrant, this is called second quadrant, this is called third quadrant and this is called fourth quadrant. There are infinite points on the plane. Some of the points will lie on x-axis, other will lie on the quadrants. Suppose a point lie on x-axis, or let me take a general point, some point lie here. Let its 2 coordinates be x coordinate and y coordinate. Do you know what is the x coordinate also called? It is called abscissa. Abscissa spelling I guess is wrong. Abscissa. Alright. Spelling can still be wrong. And y coordinate is called ordinate. So the x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. Alright. Is the spelling wrong? There are some students sitting across on the other side. So they are all smiling. Maybe the spelling of abscissa is still wrong. Do you know what is the spelling of abscissa? ABCI or ABSI? They are also not aware. So let's not bother. We are doing maths. Even if one spelling is wrong, it's okay. But we are pronouncing it correctly. Abscissa and ordinate. If the point lie on x-axis, what will be the coordinates of this point? Every point has 2 coordinates. The coordinates of this point will be 3, 0. And what will be the coordinate of this point? -2, 0. So we will make a general statement that all points which lie on x-axis has their y coordinate 0. So वो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे जो लाई करेगा, एक्स एक्सिस वाला जो जनरल पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 होंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. वी विल make this into 3-dimensional once we are through with 2-dimensional revision. If the point lie here, it will be 0, 3. These are called ordered pairs. X coordinate is always written first, followed by y coordinate with a comma between them. So this is
x coordinate will be 0 on y axis and this is the y coordinate. What will be the coordinates of this point? 0 comma minus 2. So all points which lie on the y axis will have their coordinates as 0 comma y. Origin के coordinate 0 0 होंगे. So if you get a two-dimensional point in which the y coordinate is 0, you can automatically assume it lies on x axis, and if the x coordinate is 0, you can assume it lies on y axis. Now if your point lie on the first quadrant, उसका x और y दोनों प्लस होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x नेगेटिव है, y प्लस होगा, और यहाँ पे दोनों माइनस होंगे, x कोऑर्डिनेट भी माइनस है, y कोऑर्डिनेट भी माइनस है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट प्लस है और y कोऑर्डिनेट माइनस है. तो मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, कहेंगे सर जो 9th में पढ़ा, जो 10th में पढ़ा, वो आप दोबारा से हमें पढ़ा रहे हैं. तो कोई नहीं, बस इतना ख़त्म हो गया. अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो दिस मच इज़ गुड इनफ. हाँ, इसमें एक बात और कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पे है, या इधर वाला ले लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 होगा और y2 होगा. जब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे ना, तो अगर ये 1, 2 है तो ये 1 पे गिरेगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये 2 पे गिरेगा. ये डिस्टेंस 1 होगा और ये डिस्टेंस 2 होगा. तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास नॉलेज. ओके, सो नाउ I'll rub off this diagram and we'll make the diagram of 3-dimensional. Since you are watching this, you can use your technology, you can pause the video and then make your notes. I told you all of you should make a theory copy in which you will not do any numericals, you will just write your theory. So I'll rub this diagram, so you can watch the video now, just understand what's going on, don't try to write because it will be difficult to manage both the information at the same time. So just now you listen to me and try to understand. You can watch the video again and then write the theory. Now what I'm going to do is, I'm going to have 3 axes, x-axis, y-axis and z-axis. So this is 3-dimensional. So this z-axis actually will be coming outside the blackboard. It's a 2-dimensional surface in which I am making the 3-dimensional diagram. तो थोड़ा सा imagination हमें चाहिए, तो z-axis को हमने ऐसे बना लिया. अब इस पे हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो यहाँ जो जर्नल पॉइंट होगा P, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट. ऑलराइट. सो अगर मैं अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा ना x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस x होगा, ये वाला इंटरसेप्ट. y एक्सिस पे ये होगा, और z एक्सिस का परपेंडिकुलर तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो डायग्राम बनेगा ही नहीं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम z एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो जो इंटरसेप्ट होगा वो z होगा. अब अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका जनरल ये बनेगा उसका x, 0, 0. Any point which lie on x axis will have their y and z coordinate 0, 0. अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका होगा आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कुछ होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा. ऐसे ही कोई पॉइंट अगर z एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट कुछ होगा. सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स. ये तो बेसिक बात हो गई. और जो अलग से लाई करेंगे वो आपके उसमें x, y, z तीनों नंबर्स होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा, एक 0 फिर भी हो सकता है. अब ये जो 3 एक्सिस हैं ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो वहाँ 4 पार्ट्स प्लेन्स में डिवाइड हो रहे थे तो उनको हमने ऑक्टेंट्स बोला था. यहाँ 8 हिस्सों में डिवाइड होगा तो यहाँ हम इनको बोलेंगे ऑक्टेंट्स. क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट्स. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक मेरे पास ये प्लेन है, ओके, जो x एंड y एक्सिस से पास करेगा ना एक प्लेन सरफेस, जो x एंड y एक्सिस से एक प्लेन सरफेस पास करेगा उसको हम बोलेंगे xy प्लेन. ओके. सिमिलरली ये वाला जो प्लेन x और z से पास करेगा उसको हम बोलेंगे xz प्लेन. और ये वाला जो एक प्लेन है जो y, अभी मैं इस डायग्राम को ऑक्टेंट्स पे मैं अभी रुक के आता हूँ, पहले इन तीनों प्लेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. और ये जो प्लेन है जो y और z एक्सिस से पास करेगा इसको हम क्या बोलेंगे? yz प्लेन. तो अभी आपकी 3 बातें हो गई हैं. एक हो गया आपका x एक्सिस जिसके ऊपर हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, 0. एक हो गया आपका y एक्सिस जिस पे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, 0. एक हो गया z एक्सिस जिस पे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, z.
अब आपके बनेंगे 3 प्लेन्स, इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इन एक्सिस को भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक प्लेन जो एक्स और वाई प्लेन के एक्स और वाई एक्सिस से पास करेगा उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। जो एक प्लेन वाई और जेड एक्सिस से पास करेगा उसको बोलेंगे हम वाई जेड प्लेन। और एक प्लेन जो एक्स और जेड से पास करेगा उसको हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। इसको आप जेड एक्स भी बोल सकते हो, कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स विल लाई ऑन एक्स वाई प्लेन? इनफिनाइट पॉइंट्स। What will be the general structure of the point if it lies on x y plane? पता है वो क्या होगा? उसमें x कुछ होगा, y कुछ होगा, लेकिन 0 z हमेशा 0 होगा। तो अगर जितने भी पॉइंट्स x y प्लेन में लाई करेंगे उनका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जितने ही पॉइंट्स y z प्लेन में लाई करेंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जो अल्फाबेट यहाँ मिसिंग होता है ना वो यहाँ 0 होता है। x y प्लेन में क्या मिसिंग था? z, तो वो कोऑर्डिनेट 0 है। y z प्लेन में x मिसिंग था तो वो कोऑर्डिनेट 0 है। और एक्स जेड प्लेन के जो जनरल पॉइंट्स होंगे इसमें क्या मिसिंग है? y, तो यहाँ पे x जिंदा रहेगा, y 0 रहेगा और z होगा। तो x और z जिंदा रहेंगे, y 0 होगा। इसमें x एंड y जिंदा रहेंगे, z 0 होगा। इसमें y और z जिंदा रहेंगे और x 0 होगा। और अगर तीनों नॉन जीरो हैं तो वो किसी ना किसी ऑक्टेंट में लाई करेगा। ऑक्टेंट के बारे में मैं आपको इस डायग्राम के बाद इसको रब करके मैं आपको बनाता। तो अब आपके पास एक फेयरली गुड आइडिया हो गया डायग्राम से। और ये तो एक बहुत बेसिक है विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वी हैव एक्स एक्सिस, आई विल क्विकली रिकैप इट। वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस एंड वी हैव जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x 0 0। वाई एक्सिस पे जो भी लाई करेगा 0 y 0, और जेड एक्सिस पे जो भी लाई करेगा 0 0 z। एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो होगा x y 0। वाई जेड प्लेन में जो भी लाई करेगा वो होगा 0 y z, एंड जेड एक्स प्लेन में जो लाई करेगा वो होगा x 0 z। याद करने का तरीका क्या है? जो इसमें है वही रहेंगे, जो नहीं है वो 0 हो जाएगा, जो है वो रहेंगे। ये कैपिटल है, ये स्मॉल केस लेटर हो जाएगा, और जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। इसमें वाई जेड है, ये स्मॉल वाई जेड हो जाएंगे, जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। और याद रखिएगा हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर मैं बोलता हूँ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा। सर बोलो क्या बोलो सर? तीसरा कोऑर्डिनेट तो बोलिए। हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 2 कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। नहीं तो मिसिंग कोऑर्डिनेट 0 होगा। आप अपनी मर्जी से 0 नहीं लेंगे, ऑथर को आपको वो 0 देना होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्टेंट्स की। तो ये डायग्राम आपका बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बन गया। मेरे को भी नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा डायग्राम बना पाऊंगा। इसको आप बाद में बनाइएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड देन वील ड्रॉ द अदर डायग्राम। सो दिस इज द एडवांटेज, यू कैन पॉज योर वीडियो एंड देन कंप्लीट योर थ्योरी कॉपी। ये सब आप उसमें से देख के कर सकते हैं, या वीडियो वॉच करते हुए पॉज करके लिख सकते हैं, या पहले आप सारा समझ लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को दोबारा देखिए और उस समय अपनी थ्योरी कॉपी में इसको लिखिए। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, थ्योरी स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम ऑक्टेंट्स की बात करते हैं। कोशिश करता हूँ, ये एक मैंने प्लेन बनाया ऐसे, और ये बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को कि ये डायग्राम हम कैसे बनाएं। ओके, नहीं बनेगा ये ऐसे। तो अभी हम इमेजिन कर लेते हैं, बस मैं आपको हाथ से, ये डायग्राम मुझसे बन नहीं पा रहा है, तो आपका ना एक प्लेन मान लेते हैं ऐसे, 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे बस। चलिए इसको मैं कैसे बनाऊँ अब इधर? ये 3 एक्सिस तो हमारी बन रही हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, हम वैसे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ऑक्टेंट्स नहीं बन पा रहे हैं 2 डायमेंशनल, ब्लैक बोर्ड पे 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है। अब सुनिए, जो आपके 8 ऑक्टेंट्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करेंगे। ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैंने एक हाथ रखा ऐसे और एक हाथ रखा ऐसे। अब इस हाथ के अंदर से अपना हाथ कैसे घुसाऊँ मैं? तो ये बड़ा एक मुश्किल हो रहा है। एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। तो वी कैन इमेजिन कि हमारे 8 ऑक्टेंट्स हो गए हैं। ओके, तो अब इन ऑक्टेंट्स को हम करते हैं ऐसे, नंबर देते हैं 1 2 3। 11th क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल से 5 6 7 एंड 8। ओके, 12th में इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन इन व्हाट ऑक्टेंट इट लाइज दे विल बी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो वो मैं आपको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक हम ये डायग्राम बनाते हैं।
दिस इज द ओनली बोरिंग पोर्शन ऑफ द थ्योरी, ऑलराइट। यहाँ पे हम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साइन लिखेंगे। अब ये याद करने का देखिए आपको क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको याद थे ना, दोनों प्लस थे। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस था, y प्लस था, इसमें दोनों माइनस थे, इसमें x प्लस था, ये y माइनस था। ये तो हमको बहुत बेसिक है क्योंकि 9th में भी हमने याद किया है, 10th में भी हमने याद किया है, 11th में तो शायद हमने 3 डायमेंशनल ही पढ़ा था। अब ये साइन आप यहाँ डाल दीजिए, देखिए प्लीज़ ऊपर देखो, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ अभी लाइव पढ़ रहे हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आपने ऐसे लिख दिया। इसी की आप फोटोकॉपी फिर से लगा दीजिए, इधर देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और लास्ट वाला हो गया प्लस माइनस। सो पहले 4 में ये वाला लगा दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर उनको वापस लिख दीजिए। इनमें चारों में z प्लस कर दीजिए और इन चारों में z माइनस कर दीजिए। अब सपोज आप भूल गए, मैंने आपको बताया कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 के अंदर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बेस नहीं आएगा। दिस इज ए वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, नॉट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। अब इनको अल्फाबेट्स भी देते हैं, तो आपके 3 एक्सिस होते हैं, एक ओरिजिन होता है, चारों लेटर्स लेते हैं। तो देखो ऐसे आएगा यहाँ पे x o y z, इसमें भी आएगा x o y z, इसमें भी आएगा x o y z। आप कहोगे सर सब में सेम आ रहा है, अभी देखो अभी फ़र्क करते हैं। जिस पे माइनस है ना उस पर डैश लगा देंगे, तो यहाँ पे x o पे नहीं लगाएंगे, इसमें इस पे डैश आ जाएगा और इसमें y पे आ जाएगा। अब इसमें भी लिख लीजिए x o y z, x o y z, x o y z, x o y z। इसमें तो सारे z तो नेगेटिव ही हैं, लास्ट के बॉटम के 4, और इसके अंदर y नेगेटिव है, इसके अंदर x और y दोनों नेगेटिव हैं, और इसके अंदर y और z नेगेटिव है। तो इसमें खाली x नेगेटिव है, इसमें x एंड y नेगेटिव है, इसमें y नेगेटिव है, इसमें z नेगेटिव है, इसमें इसके अंदर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसके अंदर x और z नेगेटिव हैं, इसके अंदर तीनों नेगेटिव हैं, इसके अंदर y और z नेगेटिव है। सो दीज आर योर 4 ऑक्टेंट्स। आप नंबर्स में भी लेंगे, अल्फ़ाबेट्स में भी लेंगे, और हर ऑक्टेंट में x y z जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, उनके प्लस और माइनस आपके पास इसमें आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था 11th में, आपको शायद याद होगा कि वो कोई भी पॉइंट देते थे और आपको बताना पड़ता था कि ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है। इलेवन का क्वेश्चन, जैसे आपको एक p दे देंगे 2 - 3 - 5, अब आपसे पूछेंगे ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। अगर आपको ऑक्टेंट नंबर नहीं देना है फिर तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, x प्लस है ना और y नेगेटिव है और z आप लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको नंबर देना है क्वाड्रेंट का, फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आपको इस टेबल की नॉलेज की जरूरत है। अगर आपको सिर्फ ये लिखना है तो टेबल की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे ये -2 -3 -4 कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, तो x डैश o y डैश एंड z डैश। अदरवाइज आपको ये टेबल देखना पड़ेगा, तीनों कहाँ नेगेटिव हो गए हैं, ये है तीनों नेगेटिव, तो आपको बोलना पड़ेगा सर ये ऑक्टेंट नंबर 7 है। तो अगर नंबर पूछेंगे तो ये टेबल आपको चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स में ऑक्टेंट लिखना है तो ये टेबल भी आपको जरूरत नहीं है। जो जो नंबर्स पे नेगेटिव है उन पे डैश डाल दो, ऑर्डर यही चलेगा x o y z n। फिर भी मैं आपका बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12th क्लास की नॉलेज में, 12th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके ऊपर बेस कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम आप चाहें तो बाद में बना सकते हैं। सो लेट्स रब दिस ऑफ एंड कंटिन्यू विद द अदर थ्योरी। तो इससे आप इसको स्किप भी कर दें, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके। नाउ all this we did in class 11 also, so we are basically revising class 11. अब हम पहले करेंगे एक डिस्टेंस फॉर्मूला। 11th में ये भी हो चुका है, हमें इसको डिराइव नहीं करना है, डिराइव हमने इसको वेक्टर से भी कर सकते हैं। तो पहला अब आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है
इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे ना वेक्टर्स का, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ difference of the coefficients of i's, j's and k's. तो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus, इसमें ना किसी को भी आगे लिख सकते हैं क्योंकि लाइन में डायरेक्शन तो होती नहीं और मैग्नीट्यूड में तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप इसको पहले लिख रहे हैं तो सब पहले यही लिखिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। 30 मिनट्स के बाद बता देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, ये तो आप कब से करते आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले से हम 6-7 और फॉर्मूलेस बनाएंगे। सो आई विल रब दिस फॉर्मूला फॉर यू। आप कैसे बनाएंगे देखिए, अब मैं तो ना उन फॉर्मूलेस को रटता ही नहीं हूं, मैं मौके पे बनाऊंगा उन फॉर्मूलेस को। जैसे आपको एक पॉइंट दिया है x, y, z, what is the distance of this point from various coordinate axes, ये टाइटल है। ठीक है, तो अभी टाइटल भी लिख देते हैं क्योंकि थ्योरी में तो हमें चाहिए ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from x axis, y axis and z axis। तो ये आप आपकी अगली थ्योरी का टाइटल है, distance of point P from x axis, and when I say the distance of the point from any line, it automatically means a perpendicular distance. Otherwise आपके बहुत distances बन सकते हैं। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो ये इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर तो ये यूनिक ही नहीं रहा। सो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, distance of a point from a plane automatically means the shortest distance which will be a perpendicular distance. All right, तो आप देखते हैं कि हम इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस निकलेगा, और बिल्कुल भी उसको हमें फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं है और उसको रटने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये x एक्सिस है और मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है PA और ये है 90 डिग्रीज। अब इसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला भी होता है, मैं भूल गया हूँ और फिर से भूल जाऊंगा। मेरे को इतना पता है कि जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x 0 0। थोड़ी ही देर पहले, इससे पहले वाली स्क्रीन पे आपको मैंने कितनी बारी बोल के बताया था, इफ ए पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज 0 एंड 0। अगर आप ये 4 5 6 होगा, देखिए ये 4 5 6 और यहाँ 4 0 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा, बाकी 2 0 हो जाएंगे। अब आप इसमें लगा लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो अभी दिया था, ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो दिस स्टूडेंट्स रिमेंबर एज ए फॉर्मूला, आई डू नॉट रिमेंबर इट एज ए फॉर्मूला। तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं कहूँगा कि आप भी इसको याद करिए। कितने फॉर्मूलेज हम याद करेंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, फटाफट ये बन जाएगा, ज़्यादा टाइम तो ना लगेगा, 2-3 सेकेंड्स। आप देखिए यही पॉइंट P, अब मैं नंबर ले लूँ आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर से ले लेते हैं, -2 7 एंड 8। अब आपको इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम y एक्सिस। सो आई डोंट नो द फॉर्मूला, नाइदर आई एम गोइंग टू रिमेंबर इट। तो फॉर्मूला ना मेरे को आता है, और अगर आता भी है तो मैं भूल जाऊँगा। मेरे को ये पता है कि जब मैं इसको y एक्सिस पे गिराऊंगा परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 7 एंड 8, क्योंकि मेरे को पता है कि y एक्सिस पे x और z कोऑर्डिनेट कंपलसरी 0 होता है और ये नंबर सेम रहेगा। अब लगाइए आप डिस्टेंस फॉर्मूला, तो व्हाट विल बी PB, -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8, ये गलत हो गया, ये 0 होगा, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो x एंड z कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, y कोऑर्डिनेट आपका जिंदा रहेगा क्योंकि ये y एक्सिस है। तो जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ऐसे बनेगा। तो अब -2 माइनस 0 होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 4 -2 का स्क्वायर 4,
ये तो उड़ गया और ये हो गया 64 और ये बन गया रूट ऑफ 68। तो मेरे को फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है, मेरे को फॉर्मूला रटने की भी क्या जरूरत है, लेकिन अगर आपका मन है, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बना दिया है, अब मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो यू आर गिवन वाई एक्सिस, ये आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। आपको बोला गया है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको ए बी मान लेता हूँ। चलो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा आपका, x माइनस 0 होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं x स्क्वायर, y माइनस वाई होल स्क्वायर आपका उड़ जाएगा और z माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। व्हाई डू यू वांट टू लर्न फॉर्मूलेस, देयर विल बी 6 फॉर्मूलेस। Distance of the point from x axis, distance of the point from y axis, distance of the point from z axis, distance of the point from xy plane, distance of the point from yz plane and distance of the point from zx plane and the distance of the point from the origin। तो कितने फॉर्मूलेस हो गए, 7 हो गए आपके। मैं 7 में से एक भी याद नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक ही याद करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसको उसी क्वेश्चन में उसी वक्त हम उसको डिराइव कर लेंगे। आप इसको मिटा देता हूँ इस फॉर्मूले को, और तीसरा z एक्सिस का फॉर्मूला भी बना लेते हैं फिर, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार बना दे रहा हूँ। ये देखिए, अब ये है z एक्सिस। तो अब z एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो x और y 0 होगा और z जिंदा रहेगा। जो ये नंबर है वही नंबर यहाँ आएगा। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, x माइनस 0 होल स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 होल स्क्वायर वो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और z माइनस जेड 0 होल स्क्वायर वो गायब हो जाएगा। सो नाउ यू हैड 3 फॉर्मुलेस। अगर आप मुझसे अभी पूछोगे ना कि वो 3 फॉर्मुलेस क्या हैं, मैं तो भूल चुका। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग थ्योरी आई मेड द फॉर्मुलेस, आई एम गोइंग टू डिराइव देम। जब मेरे पास न्यूमेरिकल आएगा उसी वक्त मैं डायग्राम बनाऊंगा और ये फॉर्मूला क्वेश्चन कर लूँगा। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये देखिए ये कोई पॉइंट है, ये सपोज ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो व्हाट विल बी PO स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये भी एक फॉर्मूला आपको बना बनाया दिया जाता है। तो आप चाहें तो इसको याद करिए, चाहें तो इसको मौके पे डिराइव करिए। सो आज की क्लास में क्या हुआ, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी शुरू की। पहले हमने 11th और 10th की थ्योरी रिवाइज की। वी सॉ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वाड्रेंट्स, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। देन कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वाई पे करता है, किसी कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो उसके प्लस माइनस या जीरो क्या होते हैं। फिर हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की। उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस स्पेस को 8 भाग में डिवाइड करते हैं। हर भाग को हम बोलेंगे, क्योंकि 8 हो गए तो इनको कोऑर्डिनेट ना बोल के ऑक्टेंट्स बोलते हैं, जिनके नंबर होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक्स एक्सिस पे कोई हर पॉइंट के अब 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। 2 डायमेंशन में 2 होते थे। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका जो जनरल शेप होगी वो x 0 0 होगी, वाई एक्सिस पे होगा तो 0 y 0 होगी, और जेड एक्सिस पे होगा तो 0 0 z होगी। ऐसे आपके 3 प्लेन्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स। एक्स वाई प्लेन जो x एंड y एक्सिस से पास करेगा, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो होंगे x, y, 0, उनका z कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स का 0 होगा। दूसरा प्लेन क्या हो गया, वाई जेड प्लेन, जो y और z एक्सिस से बनेगा, उसमें जो जनरल पॉइंट होगा वो होगा 0, y, z। और आखिरी प्लेन बचा zx प्लेन, जिसको आप x z प्लेन भी बोल सकते हैं। उसके कोऑर्डिनेट, उसमें जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होगा x, 0, z। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया। फिर मैंने एक आपके लिए चार्ट बनाया जिसका कोई रोल नहीं है क्लास 12 में। फिर मैंने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया जो आपको पहले से भी आता है, वेक्टर्स में भी हमने वो डिराइव किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। उस फॉर्मूले की मदद से हमने 3 फॉर्मूलेस किए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस, और एक और आखिर में बोनस में कर लिया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेरियस प्लेन्स। तो ये आज का एपिसोड अब बंद होता है और इसके बाद हम फिर जल्दी ही मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 में, जहाँ पे वी विल कैरी फॉरवर्ड आवर थ्योरी फ्रॉम वेयर वी आर लिविंग
today in the class. So I hope you enjoyed the class. See you soon.